बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड फॉर ENG 506। डियर स्टूडेंट्स, द ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड फॉर इंग्लिश या इन ENG 506 will remain open from July 15 and July 16, 2021। तो सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले आपने क्या करना है, इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो आपने केयरफुली इसको गौर से पढ़ लेना है। पहला कमेंट्स वो कहता है कि योर कमेंट्स शुड नॉट एक्सीड 150 to 200 वर्ड्स। GDP carries 4% weightage in your final assessment. Your comments should be clear, concise and relevant to the topic। आपके comments जो है वो clear, concise, अच्छी तरह से और टॉपिक का जो है वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। Creative and original ideas in correct English will be highly appreciated। Any queries related to graded discussion board GDP will not be entered on regular MDB। For question or queries related to the topic, you may send a ticket to ENG 506। Do not send your comments via email or regular MDB। The comments posted on the regular MDB will not be graded। Do not post your comments ट्वाइस। कभी भी 2 दफ़ा आपने जो अपने कमेंट्स को है वो पोस्ट नहीं करना। नो मार्क्स, मेन पॉइंट जो आपके पास है, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। ये आपके वैसे ये पॉइंट जो है ना ये टॉप पे होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को जो है ना वो थोड़ा बहुत ख़तरा भी महसूस हो गया। शुरू में दिया हुआ इन्होंने, तो इस तरह आपने क्या करना है, कभी भी अपनी जो GDP या असाइनमेंट है उसको आपने आजकल जो VU वाले हैं वो प्लेजरिज्म जो है वो बहुत अच्छी तरह से चेक कर रहे हैं, इसलिए इस दफ़ा जो मार्क्स हैं वो स्टूडेंट्स के असाइनमेंट या GDP में काम आ रहे हैं किसकी निस्बत जो पहले सेमेस्टर में लोग असाइनमेंट मार्क्स लेते थे। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ और इसके सॉल्यूशन की तरफ। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग हेल्प्स द लर्नर्स एज़ वेल एज़ द टीचर। यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो है, जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की बात हो रही है, किसकी हेल्प करती है? लर्नर्स जो इंग्लिश सीख रहे होते हैं और उसके साथ साथ टीचर्स जो कि इंग्लिश टीच कर रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं, किसके लिए? टू इम्प्रूव देयर कंप्रीहेंडिंग एबिलिटीज़ दैट हेल्प दैम ट्रांसफॉर्म इनटू बेटर स्पीकर ऑफ इंग्लिश एट नेशनल as well as international forums। justify the given statement with the logical arguments। इधर तक जो स्टेटमेंट है ये तक आपने क्या करना है, इसको गौर से 2-3 दफ़ा आपने पढ़ना ताकि इस स्टेटमेंट की आपको समझ आ जाए। जब इस स्टेटमेंट की आपको समझ आ जाएगी तो इसका आंसर भी आप आसानी से बना लेंगे, आप बिल्कुल ईज़िली राइट कर सकेंगे। लेकिन पहली शर्त ये है कि इसको आपने 2 से 3 दफ़ा लाजमी रीड करना है। आंसर आपके पास है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जिसको ELT भी बोला जाता है, इज़ अ डबल ब्लेंडेड पीयर टू प्रमोटिंग टीचर्स एंड लर्नर्स इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। द स्कोप ऑफ ELT includes the following fields: theory and practice in English language teaching and learning, teaching English as a second or foreign language, English teaching या English language teachers training and education, English language learner to acquire and develop skills including speaking उसमें आ सकता है, writing आ सकता है, vocabulary acquisition आ सकता है। In other words, developing language learners oral and written competency is associated with developing their reading skill। English language learner students
will need a lot of vocabulary development and teaching of comprehension strategies, even if they have been mainstreamed after some bilingual instruction. They are being pulled out for English as second language or sheltered English instruction, and or they have been assessed as English proficient, but you know that they still need additional help with language reading and writing. Examples of comprehension abilities that can be improved by English language teaching: summarizing, sequencing, inferencing, comparing and contrasting, drawing conclusion, self-questioning, problem-solving, relating background knowledge, distinguishing between fact and opinion, finding the main idea, important fact and supporting details. उसके बाद आपके पास ये मज़ीद आप इसमें एडिशनल जो हैं वो लिख सकते हैं. English crosses cultures, countries and industries. It's often used as a common tongue if neither person is native speaker. This means teaching people English can truly rewarding. Students of English have many new opportunities and doors open to them thanks to their skills. ये आपके पास सॉल्यूशन था ENG 506 GDP का. इसको आपने कभी भी एज इट इज़ सबमिट नहीं करवाना. हो सकता है कि इसमें आप अगर एज इट इज़ सबमिट करवाते हैं, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो यहाँ से देख के सॉल्यूशन जो है वो क्रिएट करते हैं. तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, या आप जो भी समझ लें कि आपने कभी भी इस सॉल्यूशन को एज इट इज़ सबमिट नहीं करवाना. इसको एक एज आइडिया आपने इस्तेमाल करना और एक एज आइडिया लेकर आपने अपना यूनिक एक डिफरेंट क्रिएट करना है, डिफरेंट सॉल्यूशन आपने. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ आया. अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जो है मुझसे पूछ भी सकते हैं, या फिर आपको मैं लिंक दे दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन के अंदर. वहाँ से आप लिंक के ज़रिए ग्रुप ज्वाइन करके, या फिर आप डायरेक्टली मेरा व्हाट्सएप नंबर यूज़ करके इनबॉक्स में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं.